Good morning, students. How's you doing? I hope you are doing well. This video is supposed to be a starting point for learning about time in history. When you study history, you will frequently see the capital letters AD, BC, CE and BCE written next to the year number. What do these labels mean and why do they matter? This video will give you the answers to these questions plus more. So let's begin. Keeping track of time dates back to the ancient Mesopotamian. There were many civilizations that had their own system to keep track of years. But our modern system of numbering years was not developed until AD 525. In AD 525, a man named Dionysius Exiguus invented the system of BC and AD. Dionysius Exiguus, okay? He invented the system of BC and AD. BC stands for before Christ and AD stands for Anno Domini, in the year of the Lord, okay? BC stands for before Christ and AD stands for Anno Domini, in the year of the Lord. Anno Domini is a Latin phrase. Anno Domini एक Latin phrase है. इसका मीन होता है इन द ईयर ऑफ आवर लॉर्ड, हमारे प्रभु के वर्ष में. When you read 2500 BC out loud, it sounds like the 2500 years before the birth of Christ. जब आप 2500 BC को रीड करते हो, ओके, 2500 BC को रीड करते हो तो इसका मीन क्या होगा? जीसस क्राइस्ट के बोर्न के 2500 ईयर्स पहले, ओके. AD is an abbreviation for a Latin term Anno Domini, which stands for years of the Lord, जो years of the Lord के लिए स्टैंड होता है, ओके. What's even more confusing to you is how these dates work. Think of time as number line. All the years that come before Christ are negative numbers and all the years after the birth of Jesus Christ are positive numbers. You can see here number line. All the years before birth of Christ and all the years after the birth of Christ. These are negative numbers and these are positive numbers. अगर आप ये कंसिडर करो कि जीसस क्राइस्ट का बोर्न जो है यहाँ हुआ था, ठीक है, टाइमलाइन पर, तो यहाँ पर ये जो नंबर है ये नेगेटिव नंबर से जो जीसस क्राइस्ट के बोर्न के पहले वाले ईयर्स को बताता है. और जबकि आप आगे देखोगे यहाँ पर तो ये जो नंबर्स है ये पॉजिटिव नंबर है जो जीसस क्राइस्ट के बोर्न के बाद के हैं. I know you are thinking, if you don't believe in Jesus Christ, will this doing will be unofficial for you? Because a global standard for many years has been using a wrong method. Now it has been corrected and in place of BC is used and in place of AD CE is used. BCE stands for before common era and CE stands for common era, okay. Although there is a new way to refer to these years, since the later part of the 20th century, the use of BCE and CE have been popularized. BC before Christ to BCE, which stands for before common era, and AD will now be referred to as CE. AD will now be referred to as CE, okay? And BC will now be referred as BCE.
More and more books and scholars are using these new terms in their writings. Both methods of labeling are equivalent. You will not be punished for using either method. Just keep in mind that both are equivalent. ये दोनों ही एक है, ठीक है, BCE and BC, CE and AD. So you don't have to be confused. आपको confused नहीं होना है. BC and BC एक है, AD and CE एक है. BC before Christ, BCE before common era, AD after Christ या फिर Anno Domini, ठीक है. Anno Domini बोलोगे in the year of Lord, CE common era. Now you have to understand BC, BCE and AD C terms on number line. अब आपको ये नंबर लाइन पे समझना है. जैसे हमने कंसीडर किया कि यहाँ पर जीसस क्राइस्ट का बोर्न हुआ था, ओके. तो जीसस क्राइस्ट के बोर्न के जो पहले वाले ईयर से इनको BC बोला जाता है, ठीक है, बिफोर क्राइस्ट. और जीसस क्राइस्ट के बोर्न के बाद वाले जो नंबर्स हैं उनको AD बोला जाता है, एनो डोमिनी. और BC को ही BCE बोला जाता है, ये मैंने आपको बता दिया है. और AD को ही CE बोला जाता है, कॉमन एरा, ठीक है. BC का यूज नंबर के बाद में होता है और जबकि AD का यूज नंबर के पहले होता है, ओके. BC का यूज नंबर के बाद में होता है और AD का यूज नंबर के पहले होता है. यू कैन सी दिस पार्टीशन. यहाँ पर आप पार्टीशन देख रहे हो. This part represent the years before Christ was born and this part represent the years after Christ was born. Christ के बोर्न के पहले वाले ईयर्स है ये, और ये क्राइस्ट के बोर्न के बाद वाले ईयर्स है. लाइक हम देखते हैं बिफोर क्राइस्ट 500, ओके. 500 BC, 1000 BC, 1500 BC, 2000 BC. एंड अगर हम आगे की बात करें तो AD 500, AD 1000, AD 1500, AD 2000. You can see here is written 563 BCE. 563 BC या फिर BCE दोनों ही टर्म्स का यूज़ किया जा सकता है, दोनों ही टर्म्स से लेबल किया जा सकता है. तो 563 BC से आप क्या समझ रहे हो? 563 ईयर्स पहले. कब, कितना किसके पहले? बिफोर क्राइस्ट, मतलब क्राइस्ट के बोर्न के 563 ईयर्स पहले. अब अगर हम इसको देखते हैं कि 563 BC जो है ये क्या होगा, तो 563 BC को गेट करने के लिए जैसे आप 2019 में अगर कैलकुलेशन कर रहे हो तो 2019 में आप अगर बुक रीडिंग कर रहे हो तो आपको पता चलेगा कि 563 BC गौतम बुद्ध का बोर्न हुआ था, ठीक है. तो उनका बोर्न कब हुआ था? 563 BC. तो हम क्या करेंगे, 2019 जो है ईयर मान लिया, उसमें से 563 को ऐड कर देंगे, ठीक है. 2019 जो है इसमें क्या कर देंगे, 563 ऐड कर देंगे. ये हम कैलकुलेशन कर रहे हैं, ठीक है. BC को कैसे फाइंड करना है, इसके बाद हम देखेंगे AD को कैसे फाइंड करना है. तो हमें टाइम दिया होता है बुक के अंदर 563 BC. अब हमें इसको फाइंड करना है कि बिफोर क्राइस्ट, मतलब जीसस क्राइस्ट के बोर्न के 563 ईयर्स पहले किसका बोर्न हुआ था? गौतम बुद्ध का, ठीक है. तो वो फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, प्रेजेंट जो ईयर होगा हमारा, ठीक है, जिसमें हम अभी रह रहे हैं, तो मैंने यहाँ पर 2019 लिया है, ठीक है. तो 2019 में मैं 563 प्लस कर दूँगी, ठीक है. तो हमें क्या गेट हो जाएगा, वो टाइम जितने ईयर्स पहले उनका बोर्न हुआ था, मतलब आज से जितने ईयर्स पहले उनका बोर्न हुआ था वो ईयर्स आपको गेट हो जाएंगे, ठीक है. यू विल गेट दैट ईयर 2583 ईयर्स होगो, ठीक है. जैसे कि 2582 ईयर्स पहले गौतम बुद्ध का बोर्न हुआ था, जबकि आप बुक में रीड क्या करोगे 563 BC. तो आपको ये बहुत कंफ्यूजिंग लगेगा, लेकिन यहाँ पे आपका कंफ्यूजन क्लियर हो गया होगा आई थिंक. तो यहाँ पर हमने BC वाला कंसेप्ट देखा है, BC और BCE वाला, ठीक है, जो नेगेटिव पॉइंट्स होते हैं, ठीक है. अब हम देखेंगे पॉजिटिव पॉइंट्स, मीन्स AD देखेंगे हम.
एडी स्टैंड्स फॉर एनो डोमिनी। ओके, एडी का मीन होता है एनो डोमिनी। यहाँ पर बैटल ऑफ पानीपत के बारे में दिया हुआ है, फर्स्ट बैटल, सेकंड, थर्ड। ओके, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड बैटल। तो जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है 1526 एडी में कौन सा बैटल हुआ था, पानीपत का। तो अब हमें फाइंड करना है कि 1526 में पानीपत का जो बैटल हुआ था तो कितने ईयर्स पहले हुआ था। तो वो फाइंड करने के लिए हमें क्या करना होगा, हम जो ईयर यूज़ कर रहे हैं, मतलब मैं 2019 में अगर कैलकुलेशन कर रही हूँ तो मैं 2019 में से 1526 को सब्ट्रैक्ट कर दूंगी। तो सब्ट्रैक्ट करने के बाद में जो ईयर्स गेट होंगे वो क्या होगा, इतने ईयर्स पहले 493 ईयर्स पहले फर्स्ट बैटल हुआ था पानीपत का। ठीक है, ये कैलकुलेशन है। जब आपको जीसस क्राइस्ट के बोन के पहले वाले ईयर्स के बारे में पता करना है, ठीक है, ये नंबर लाइन है, यहाँ पर जीसस क्राइस्ट का बोन हुआ, यहाँ पर पॉजिटिव पॉइंट्स है और इस साइड नेगेटिव पॉइंट्स है। ठीक है, नेगेटिव नंबर से या ईयर से। तो अगर आपको यहाँ से नेगेटिव ईयर्स के बारे में पता करना है तो नेगेटिव ईयर्स के बारे में पता करने के लिए आपको प्रेजेंट जो ईयर है उसमें यहाँ पर जो ईयर दिया हुआ है उसको ऐड कर देना है। ठीक है, जैसे 500 दिया हुआ है तो आप क्या करोगे, 2020 में जी रहे हो अभी, तो 2020 में क्या ऐड कर दोगे, 500। ओके, तो 500 ऐड कर दोगे तो आपको पता चल जाएगा कि कितने ईयर्स पहले ये इवेंट हुआ था, कितने ईयर्स पहले ये घटना हुई थी। ठीक है, इसके अलावा जब आप पॉजिटिव साइड पे, मतलब यहाँ पर ये नंबर लाइन जो है इसकी पॉजिटिव साइड जो है, इस साइड अगर आप काउंट करोगे, जैसे यहाँ पर दिया हुआ है 500 AD। ओके, AD 500 दिया हुआ है, तब आप अगर इसको काउंट करोगे, इसका पता लगाओगे कि AD 500 मीन्स कितने ईयर्स पहले, तो आपको क्या करना है, जो प्रेजेंट टाइम है उसमें से 500 को सब्ट्रैक्ट कर देना है। तो सब्ट्रैक्ट कर दोगे, कट कर दोगे तो क्या हो जाएगा, वो ईयर गेट हो जाएगा जितने ईयर्स पहले वो इवेंट हुआ था। ठीक है, तो यहाँ पर हम एक और एग्जाम्पल देखते हैं 2019 में से। यहाँ पर 1556 में सेकंड बैटल हुआ था पानीपत का। तो 2019 में से अगर आप 1556 को सब्ट्रैक्ट कर दोगे तो आपको गेट हो गए 463 ईयर्स। तो यहाँ पर आपको ये पता चलेगा कि सेकंड बैटल जो है वो 2019 के 463 ईयर्स पहले हुआ था। डियर स्टूडेंट्स, आई होप दीज लेवल्स आर क्लियर टू यू। आप इन टर्म्स को समझ गए हो, BC और AD क्या होता है। पहले कैलकुलेशन जो है वो पॉसिबल नहीं हो पाती थी, तो क्या हुआ कि जीसस क्राइस्ट के बोन के टाइम से ही आगे वाला जो टाइम है उसको प्लस माइनस में रखा गया और यहाँ अभी वाला जो टाइम चल रहा है उसको प्लस में रखा गया। तो ये आपको कंसेप्ट एक बार वापस से ही वीडियो देखना है, ट्वाइस यू हैव टू वॉच दिस वीडियो।